Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of CAT LRDI practice series. Hope you're doing well. So today we have a puzzle based set, right? Let's start with this. And before proceeding, if you are preparing for CAT 24, right? So if you're preparing for CAT 24, Chanakya batch is going to start from 27th of May. This batch will cover each of the subjects in comprehensive manner, right? इसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा, complete syllabus coverage, printed booklets, live doubt solving आपका हो जाएगा, one to one mentorship, and this also includes all the OMITS preparation, right? बाकी exams की preparation is everything included, right? So if you can definitely check out this batch. Links तुम्हारे description में होंगे, and जो calling numbers हैं हमारे वो already आपके displayed है. ठीक है, the price of this batch is 17,500 and this is the least you can actually get. Now let's start with the set. As always, the idea should be कि पहले आप इस particular set को खुद से एक बार try करो, right? And then proceed on with the rest of the solution. Now I hope you have tried this, you have paused the video, right? Let's start the discussion of this particular set. ठीक है, बनाते हैं. अब क्या दिया हुआ है? Hari wanted to get a new phone number which comprises 8 non-zero digits. He chose a phone number which satisfied all of the following condition, with the digits being referred to as first to 8 starting from the leftmost digit. So basically जो हरी है वो basically एक 8 digit का number बना रहा है, left to right, first digit, second digit, third digit, fourth digit, fifth digit, sixth digit, seventh digit और eighth digit, right? So basically हमें एक 8 digit का number बनाना है, 8 digits है हमारे पास. Then that next part was very important. It comprises 8 non-zero digits. तो आपके पास ये जो digits हैं, right, 5, 6, 7, 8, 9, these have to be non-zero digits. तो कभी भी आप zero use इसमें नहीं कर सकते. You'll have to keep that in mind. Now, he chose a phone number which satisfied all of the following condition, with the digit being referred to as first to his starting from the leftmost digit. ठीक है, order भी clear था. Now we have some additional conditions, and on the basis of that we have to go ahead and answer the problems. So एक एक करके conditions पढ़ते हैं. The first condition, the last digit was greater than the third digit. Last digit मतलब the 8th प्लेस पे जो डिजिट है इज ग्रेटर दैन द थर्ड डिजिट. थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है, सो मतलब 8th प्लेस वाला जो नंबर होगा थर्ड प्लेस वाले नंबर से ग्रेटर होगा. ऐसे लिख सकते हैं, अपने को याद रहेगा, राइट? while the fourth digit and the fifth digit taken in that order comprised a prime number. So fourth and fifth number से जो नंबर बनेगा, तो फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स जो भी होंगे एक 2 डिजिट नंबर बनाएंगे अगर हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे. तो वो बोल रहा है कि ये दोनों से जो एक 2 डिजिट नंबर बनेगा, that has to be a प्राइम नंबर. नाउ एक 2 डिजिट नंबर अगर एक प्राइम नंबर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये नोटिस करने वाला है कि बिकॉज 2 डिजिट नंबर प्राइम है, तो उस 2 डिजिट नंबर का जो यूनिट्स प्लेस होगा, इट कैन नॉट बी एन इवन नंबर, बिकॉज फिर वो 2 डिजिट नंबर आपका प्राइम नहीं रह जाएगा. इट ऑल्सो कैन नॉट एंड इन अ 5, बिकॉज वो नंबर हमेशा 5 से डिजिबल होगा, तो इट विल नॉट बी अ प्राइम. सो द यूनिट्स प्लेस ऑफ दिस नंबर जो कि फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट से बनता है, वो क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर 5, राइट? सो द ओनली पॉसिबिलिटीज दिस कैन हैव इज 1, 3, 7 एंड 9. ये पॉसिबल हमारे पास वैल्यूज हैं फिफ्थ डिजिट के. ये कंडीशन था. Then the sixth and the third digits taken in that order comprise an even number greater than 40. तो sixth and the third digit taken in that order, मतलब sixth आएगा followed by the third digit आएगा, it comprise an even number greater than 40. तो अभी this and this मिला के एक नंबर जो बनेगा आपका वो 40 से ग्रेटर होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए. तो दो कंडीशन साथ में. सबसे पहले ये जो 6 डिजिट होगा, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तभी वो 2 डिजिट नंबर हमारा 40 या 40 से बड़ा होगा. ऑल्सो 6 फॉलोड बाई थर्ड, तो ये जो डिजिट होगा इसी को एक्चुअली में इवन होना पड़ेगा, तभी वो 2 डिजिट नंबर तुम्हारा क्या होगा? इवन होगा. सो दैट मीन्स ये जो थर्ड प्लेस पे डिजिट है जीरो हो नहीं सकता, बिकॉज स्टार्टिंग में मना कर दिया था. इट कैन बी 2, 4, 6 एंड 8. सो दिस प्लेस हैज ऑल द 4 पॉसिबिलिटीज. While the first and the second digits are not the same, right? Second point में जो next part दिया है, while the first and the second digit, so first and the second digit are not the same. तो वो दोनों क्या होने वाले हैं? आपके distinct होने वाले हैं. Now the third point, the sum of the fourth digit and the third digit was the same as the fifth digit. So third plus fourth is actually equal to the fifth digit. इसने ये बोल दिया. ये दोनों का addition करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 5 आएगा,
राइट, एंड देन वी हैव वन मोर कंडीशन, द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ डिजिट। तो क्या बोला उसने, पहले तो ये बोल दिया कि थर्ड प्लस फोर्थ हमारा क्या आएगा, फिफ्थ डिजिट आएगा। फिर वो बोल रहा है द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ डिजिट वाज एग्जैक्टली 9। तो ये दोनों को अपन ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, राइट। तो अभी यहीं तक होल्ड करते हैं, उसके आगे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करोगे, ये दोनों का एडिशन 9 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां से आप 9 नहीं पिक कर सकते ना, बिकॉज 9 के साथ तो 0 आना पड़ेगा, बट ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। सो 9 इज रूल्ड आउट। देन 7 प्लस समथिंग करके 9 अगर बनना है तो ये 2 होना पड़ेगा, दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो 7 भी नहीं हो सकता बिकॉज उसके साथ 2 चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है, ये हमारा 2 होगा। ऑल्सो यहां पे ये 1 भी नहीं हो सकता। अभी पूछो 1 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये 1 आना कैसे चाहिए था, ये दोनों के एडिशन से बनाना चाहिए था। और अगर हम दो नॉन जीरो डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा सम 1 नहीं आ सकता ना, क्योंकि दोनों नंबर कम से कम तो 1 होते, तो ये 1 नहीं बन सकता बिकॉज इन दोनों के एडिशन से तुम्हारा 1 आना चाहिए था। सो 1 इज ऑल्सो रूल्ड आउट। तो हमारा फिफ्थ प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमने प्रिसाइसली बोल दिया, दिस हैज टू बी 3, राइट। एंड नाउ बिकॉज दिस प्लस दिस शुड बिकम इक्वल टू 3, अब तुम्हें क्लिक करेगा कि तुम यहां से 4, 6 और 8 तो यूज कर ही नहीं सकते बिकॉज उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो 3 नहीं बन सकता, राइट, और ऊपर जाएगा। सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर दिस थर्ड प्लेस एंड दैट इज 2। तो यहां पे क्या आ गया, 2। एंड बिकॉज दिस प्लस दिस हैज टू बिकम 3, सो ये नंबर क्या रहा होगा हमारा, 1 रहा होगा। तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 3। एंड बिकॉज फिफ्थ एंड सिक्स प्लेस डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए अपना, 9 होना चाहिए। सो 3 के साथ यहां डेफिनेटली हम क्या रखने वाले हैं, 6 रखने वाले हैं। एंड विद दैट ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। और तुम ये भी नोटिस करोगे 1 एंड 3 13 है, दैट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। और ये नंबर हमारा 40 से बड़ा भी है, 62, और इवन नंबर भी है। तो यहां तक का आपका कंडीशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमने ये नेक्स्ट पार्ट छोड़ा था, वो क्या बोला था, while the sixth and the seventh digit taken in that order comprise a prime number। तो sixth and seventh digit in that order comprise a prime number। तो 6 followed by something, वो 2 डिजिट नंबर हैज टू बी अ प्राइम नंबर। तो 60 की सीरीज में कोई प्राइम नंबर सोच लो, तो 60 की सीरीज में प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो 61 होता है या तो 67 होता है। So we have two possibilities for this 2 digit number, either it is 61 or it is 67। मतलब इस प्लेस पे या तो 1 जाएगा या तो तुम्हारा क्या जाएगा, 7 जाएगा, ठीक है। सो यहां तक के तो आपके पॉसिबिलिटीज हमने फिगर आउट कर लिए। अभी तक सब कुछ यूनिक है एक्सेप्ट फॉर दिस 1 and 7। नाउ we'll have to read the final condition to get all the remaining pieces। नाउ अब नोटिस करो लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ था, सेकंड एंड द एट्थ डिजिट्स टेकन इन दैट ऑर्डर कंप्राइज द नंबर विच वाज 4 मोर देन द नंबर कंप्राइज बाय द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट। नाउ एक्चुअली में नोटिस करोगे तो आपका इन्हीं डिजिट्स को कंबाइन करके कुछ नंबर्स बनेंगे और इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। तो लिखने के पर्सपेक्टिव से लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है तुम्हारा, तो आपका एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, द सेकंड एंड द 8 डिजिट सेकंड इन दैट ऑर्डर। तो सेकंड एंड द 8 डिजिट मतलब बीसी एक 2 डिजिट नंबर बनेगा, that has to be 4 more than the number comprised by the first and the second digit taken in that order। तो first and second से क्या बनेगा, ये भी। तो एक्चुअली में वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं एक 2 डिजिट नंबर बनाता हूं, लेट्स से a फॉलोड बाय b, उसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, हमारा b फॉलोड बाय c, ठीक है। ये वाला नंबर इज 4 मोर देन दिस नंबर, तो डेफिनेटली ab प्लस 4 शुड एक्चुअली टर्न आउट टू बी bc। नाउ एक चीज दिया हुआ था तुम्हारा कंडीशन कि फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट शुड नॉट बी इक्वल। अब तुम्हें यहां पे थोड़ा सा समझना है। देखो, अगर तुमने b को ऐसा नंबर रखा जो कि 4 के साथ ऐड होके कैरी ओवर नहीं दे रहा, राइट, समथिंग प्लस 4 या तो आपका कैरी ओवर देगा या तो नहीं देगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हारा b ऐसा नंबर है जो कि 4 के साथ ऐड होके कैरी ओवर नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल b अगर 5 हुआ तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, अगर 4 हुआ तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अगर ये सिनारियो हुए तो ये दोनों नंबर ऐड करके एग्जैक्टली c बना देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जो a है वही तुम्हारा यहाँ पे भी आना चाहिए, बिकॉज अगर कैरी ओवर हुआ नहीं तो यहाँ का जो नंबर है वही एग्जैक्टली हमारा नीचे दिखना चाहिए। बट दैट एक्चुअली मीन्स कि a एंड b आर इक्वल, बट ये चीज अलाउड है नहीं। A and B have to be distinct. First and the second digits should not be equal. And hence we can logically infer from this
कि यहाँ पे डेफिनेटली कैरी ओवर जैसा कुछ तो डेफिनेटली हो रहा होगा, तभी हमारा अब इस ए में इधर से कुछ कैरी ओवर आएगा, मे बी 1 का आएगा, उसमें ऐड होके हमारा बी चेंज हो जाएगा, राइट। तो अब कैरी ओवर कैसे आ सकता है उसकी बहुत लिमिटेड पॉसिबिलिटी है, सो यू कैन गो एंड सिंपली डू अ बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल। जैसे बी को अपन 5 तक तो वैसे भी नहीं रख सकते ना, 1 2 3 4 5, बिकॉज कैरी ओवर नहीं मिलेगा। 6 तो इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज 6 + 4 क्या बन जाएगा 10, तो सी की वैल्यू एक्चुअली क्या आ जाती है 0, बट दैट इज नॉट अलाउड, द नंबर शुड बी नॉन जीरो डिजिट्स। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी एक्चुअली क्या है, बी या तो 6 होगा या तो 7 होगा, या तो हमारा 7 होगा या तो 8 होगा या तो हमारा 9 होगा। बस तुम्हें जल्दी से चेक करना है और फाइनल चेक होगा किससे, इस वाले से। जो 8th प्लेस का डिजिट है दैट इज सी शुड बी ग्रेटर देन द 3rd प्लेस डिजिट दैट इज 2। तो सी ऐसा आना चाहिए जो 2 से क्या हो, बड़ा हो। आओ चेक करते हैं, बनाते हैं। सो लेट से एक एक केस, अगर मान लो बी को मैंने 7 रखा, तो समथिंग एंडिंग इन अ 7 + 4, तो ये नंबर यहां पे आ जाना चाहिए। तो अब नोटिस करो क्या है यहाँ पे 7 + 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा 1, और लाइक 2 डिजिट नंबर है, समथिंग एंडिंग इन 7, उसमें 4 ऐड करके 71 आया, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा 67। तभी नोटिस करोगे ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि सी की वैल्यू इससे कंपेयर हो रहा है ना, सी की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 1, बट ये नहीं हो सकता था बिकॉज इससे बड़ा आना चाहिए, तो 2 से बड़ा आना चाहिए सी को, तो वो हमारा अलाउड नहीं होना चाहिए, सो दिस विल गेट एलिमिनेटेड, ये नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट 8, अगर मैं यहाँ पे समथिंग एंडिंग इन 8 करता और 4 करता, ऐड करता, तो ये 8 का 8 यहाँ आना चाहिए। अब 8 + 4 से डेफिनेटली यहाँ पे 2 बनने वाला है और कैरी ओवर जाएगा 1। अब 1 यहाँ पे आया कैरी ओवर में, तो 1 किस में ऐड करेंगे कि 8 बनेगा, डेफिनेट सी बात है क्या आएगा 78। तभी 78 + 4 से 82, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब की बात तुम्हारा सी कितना आ गया 2 आ गया, बट 2 से बड़ा आना चाहिए, एंड दैट एलिमिनेट्स आर नेक्स्ट केस ऑल्सो। तो अब हमारा गारंटीड है कि हमारा ए की पॉसिबिलिटी बची है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मान लो अगर मैं 2 डिजिट नंबर में यहाँ पे 9 लेता हूँ, दिस वन, तो समथिंग एंडिंग इन 9 + 4 किया, और ये 9 यहाँ पे उतरेगा बिकॉज AB4 PC लिखा होता है, राइट। 9 का 9, और 9 + 4 से क्या आ जाएगा हमारा 3, कैरी ओवर में क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या रहा होगा एक्चुअली में, जिसमें 1 ऐड करके 9 बनेगा is 8. तभी 89 + 4 is 93, and now our value of C becomes 3, that is greater than 2, and hence वही हमारा final case satisfy करेगा, and that is all about the set. तो A and B की values हमारी क्या आ जाएंगी 8 and 9 in that order, 8 9 in that order, and उसके corresponding हमारा C कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. So that is going to be our value of C. Right? So now we can actually go ahead and solve all the problems. The first problem, in how many ways could Hari have chosen his phone number? अब नोटिस करो ये 8 डिजिट नंबर के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, वही हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। तो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं वो किस बात पे डिपेंड करेंगे कि क्या सारी चीज यूनिक है या फिर कुछ चीजें शफल हो सकती हैं। तो नोटिस करो सारी चीजें यूनिक है एक्सेप्ट फॉर दिस 7th प्लेस। अब कितने 2 डिजिट मतलब कितने आप नंबर्स बना सकते हो 8 डिजिट के, तो सिंपल सी बात है सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, बट यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो अलग केस बनेगा, 7 रखोगे दूसरा केस बनेगा। So the answer to the first question is 2. The second problem, what is the 8th digit of the phone number? So 8th digit of the phone number हमारा क्या आ गया 3 आ गया, so that has to be 3. Third problem, which of the following is a number comprised by the 5th and the 2nd digits of the phone number taken in that order? So 5th and 2nd, so 5th and 2nd, so that would be 39. And finally, what is the difference between the first and the last digits of the phone number? So first and the last digits of the phone number, that is 8 and 3 का difference, and that has to be a 5. Right? So काफी like comfortable set है. This should not have been too difficult. Right? So बन गया आपसे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना, so please go ahead and analyze कि वो क्या पार्ट था जो तुम्हें क्लिक नहीं करा, and उसी को सीखने का एक्चुअली में अपने को ट्राई करना है। राइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम दूसरे पजल के साथ विल मीट। ओके, थैंक यू।